Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello and welcome to our performance and career management class. Today is our lecture 3 and today we are going to discuss about the second phase of our chapter, that was regarding measuring job performance or measuring the criteria that what should be the measurement criteria to choose regarding job performance. So in the last lecture we have just have an overview regarding job performance in context, in which we have studied that there is a performer, that is basically an individual or a team. It has some qualities, it has some abilities that are related to particularly that individual or a team, and it works basically in a given situation, and it engages with different behaviors which resultantly produce various kinds of results. So this is basically the whole context. So now keeping in view about this situation, we have three things. The first thing is the trait approach, in which there are individuals or teams having some abilities. Then there is a behavior approach, in which there are certain kind of behaviors that perform the tasks, and then ultimately they produce the results. So these are basically the three things while performing the job. Now coming to the next slide, there are similarly the approaches to measuring performance. Now we have three approaches to measure the performance, or to choose that which criteria is better for the things. Okay, so now first of all, let's come to the behavior approach. It emphasizes how employees do the job. In behavior approach, we will also discuss into the details that how employees are doing their job. And in the results approach, we basically are more concerned with the outcomes, that what kind of results have they produced, or emphasizes what employees are actually producing. And the third is the trait approach, that is basically regarding to the individual or the team that are that might have the skills, and if they don't have the skills, we have to work on that. So these are basically the three things which we consider. Now let's come to the next slide, which is basically a behavior approach. And now while considering the approaches, we have three different situations that we can see that there are three different scenarios through which we see that which approach is better for our organization. Now considering behavior approach, it is appropriate if employees take a long time to achieve desired outcomes. Now it is basically related to the long time approach. As you can see that employees relatively take long time. Here I would like to give you an example of NASA, where when they have gone to when they were going to Mars, so they were doing a long time project. So they were just focusing on their behaviors, and on the basis of that they have achieved the task. Similarly, there is a link between behaviors and results is not obvious. Now this is basically the thing where we do not know that what would be the obvious results. यहाँ पे हम वो काम कर रहे होते हैं, वो सिचुएशन होती है, बिहेवियर अप्रोच हम उस वक्त चूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि आगे जो है वो हमारा रिज़ल्ट किस तरह का आएगा, या हम जो आउटकम लेना चाह रहे हैं, क्या वो आउटकम जो है वो एक्चुअल आउटकम जो है वो क्या बनेगी. तो ज़्यादातर ये उन सिचुएशंस के अंदर अप्रोच यूज़ की जाती है जहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे ज़्यादा एक नया काम हो रहा होता है. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस की, तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है वो हम एक अचीव तो करना चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो एक हम गेम बनाना जा रहे हैं या हम एक सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हैं,
लेकिन उसमें हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इसी तरह से जब हम कोई टेक्नोलॉजी नई बना रहे होते हैं, तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हम चाह तो रहे होते हैं कि हमारे पर्टिकुलर रिज़ल्ट्स जो हैं वो उससे अचीव हों, लेकिन जब हम बनाना शुरू करते हैं तो अपने बिहेवियर से बाज़ औक़ात हमें ये भी पता लगता है कि हम उससे और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक जब हमने ड्रोन बनाया, तो ड्रोन का जो मेन मकसद था वो ये था कि इसको जो है वो हम फ्लाई करेंगे और फ्लाई करवा के जो है वो हम सराउंडिंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस अगर देखी जाएँ तो आज के दौर में आप देखें तो कैमरास जो हैं वो ड्रोन के ऊपर लग के और उसको जो है वो हम एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम आर्मी के अंदर सर्वेलेंस में यूज़ कर रहे हैं, फिर हम स्प्रेज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फिर हम डिलीवरीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो ड्रोन्स हैं, इसी तरीके से ये आर्मी वाले जो हैं वो बॉम्बिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रोन्स जो हैं वो पहले उसका कुछ मकसद और था, लेकिन बिहेवियर से हमें ये पता लगा कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि फ्यूचर में हम आगे लेके चल सकते हैं। तो इसी तरह से आउटकम्स अक्कर इन द डिस्टेंट फ्यूचर, जहाँ पे फ्यूचर थोड़ा आगे होता है वहाँ पे आउटकम्स जो हैं वो इसमें अक्कर हो रही होती हैं। इसी तरह से पुअर रिजल्ट्स आर ड्यू टू कॉजेज़ बियॉन्ड द परफॉर्मर्स कंट्रोल। जो पुअर रिजल्ट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात ये होता है बिहेवियर अप्रोच के अंदर बेसिकली एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आउटकम्स नहीं देख रहे होते, हम इसमें रिज़ल्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते। हम अगर देख रहे होते हैं तो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि उसने एक टास्क परफॉर्म कैसे किया। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें वहाब रियाज़ का वो एक स्पेल था जिसमें उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। गो के हम वो मैच हार गए थे, लेकिन उसकी बॉलिंग आज भी याद की जाती है। इसी तरह से इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक हमारा मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 84 बनाए थे, बांग्लादेश में वो मैच हुआ था और इंडिया के ख़िलाफ़ था। और उसमें मोहम्मद आमिर ने आते साथ ही जो है वो 3 विकेट्स ले ली थी, शायद 6 या 7-8 रन्स की दे के। तो उसमें हमने ये नहीं देखा था कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं, हमने वहाँ पे ये देखा था कि एक परफॉर्मेंस कैसी रही, उनके बिहेवियर्स कैसे रहे, उनकी फील्डिंग अच्छी थी, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, या उनके वो बिहेव कैसे कर रहे थे। तो ये बिहेवियर अप्रोच के अंदर जो है वो हम इसी तरीके उन बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि वो बिहेवियर कैसा है। अगर तो उसका बिहेवियर ठीक होता है तो डेफ़िनेटली हम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ जो है वो ज़रूरी है और वो ये है कि जब हम बिहेवियर अप्रोच यूज़ करते हैं तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस बिहेवियर होता है, तो हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए, हमारे पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि जिससे हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम कॉन्टीन्यूसली उनका बिहेवियर चेक कर रहे हों और फिर उसको नोट भी कर रहे हों। तो हमारे पास इस तरह का क्राइटेरिया, हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज लाजमी होने चाहिए कि जिसकी बेस पे हम लोगों का बिहेवियर चेक कर सकें। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो देख सकें। मैं वैसे आपको जो है आपके साथ एक वीडियो भी इसकी शेयर करूँगा, एक मूवी है बिहेवियर से रिलेटेड कि हम किस तरह से लोगों के बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि अगर तो एनवायरनमेंट जो है वो आपका सपोर्टिव है तो डेफ़िनेटली जो है वो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट तरीके से जो है वो काम कर सकेंगे। लाइक ये जो हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं बाज़ औक़ात, या हमारी ये जो पनिशमेंट्स होती हैं, या हमारे जो लेटर ऑफ़ कंसर्न्स होते हैं या वार्निंग लेटर्स होते हैं, तो ये भी हमारे बिहेवियर के ऊपर जो है ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर आज जो है वो अगर किसी ने अच्छा काम किया है और हमने उसकी तारीफ़ जो है वो बाकी सारे लोगों के अंदर की है, तो मोटिवेशन आ जाती है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर उसको पनिशमेंट दी है तो वो लोग अगर काम नहीं कर रहे तो वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये काउंट कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिहेवियर अप्रोच के अंदर होती है वो ये होती है, लाइक ये जो हमारा फोर्थ जो कंटेंट था दैट वाज रिगार्डिंग पुअर रिजल्ट्स आर ड्यू टू कॉजेज़ बियॉन्ड द परफॉर्मर्स कंट्रोल। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी भी आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। लाइक मैं आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता हूँ। अगर हम रेस्टोरेंट हम जाते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं,
तो हम बार बार जो है वो हम वेटर को कह रहे होते हैं और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि तुम खाना नहीं लेके आए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गलती हो सकता है कि कुक जो है वो लेट कर रहा हो सकता है कि कुक की भी गलती ना हो सकता है लाइट ना हो, गैस ना हो, वो चली गई हो और वो प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से खाना जो है वो टाइम पे ना बना हो, या फिर रश बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा लेट हो जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ गलती जो होती है वो यहाँ पे जो आदमी उस टाइम पे होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गलती हो। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपकी बुक में भी दी हुई है कि अगर एक आदमी जो है वो नाइट शिफ्ट करता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट करता है। अब मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है वो लेट्स सपोज़ कि अगर एक वो मशीन जिस पे वो काम कर रहा है तो वो ख़राब हो जाती है और आपको टेक्नीशियंस को लेके आना पड़ता है और वो फिर उस मशीन को देखते हैं और वो लेट लेट्स सपोज़ कि वो चलती है, तो इसमें उस इंडिविजुअल का कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर है हो सकता है तो शायद वो मशीन का कसूर हो या कोई और रीज़न्स भी हैं। तो बिहेवियर अप्रोच के अंदर जो है ये हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज़ रिजल्ट्स अप्रोच। नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ रिजल्ट्स अप्रोच, बट बिफोर दैट लेट मी टेल you what actually the result approach is. Now result approach is entirely based on the outcome approach. It is entirely based on the outcomes. हम इसमें ये नहीं देख रहे होते कि एक आदमी ने काम कैसा किया है, एक आदमी के पास वो एक्चुअल स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज़ हैं, वो नॉलेज है या नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो रिज़ल्ट्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है। आजकल के दौर में मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ मीडिया के ऊपर, लेट्स सपोज़ बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं और वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिनका जर्नलिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है सच। लाइक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ डॉक्टर शाहिद मसूद की, तो डॉक्टर शाहिद मसूद इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इसी तरह से और बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि आके यहाँ पे मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं, वो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। अब उनका प्रोफेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो रिज़ल्ट्स को एक शो अच्छा दे रहे हैं तो उसकी बेस पे उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। यही चीज़ जो है वो इस रिज़ल्ट्स अप्रोच के अंदर होती है। रिज़ल्ट्स अप्रोच के अंदर जो है वो हम एक्चुअल आउटकम देखते हैं कि इंडिविजुअल ने सेल्स जो उसको दी हुई थी वो उससे कितनी ज़्यादा की हैं, या उसने वो की हैं या उससे कम की हैं, तो हम सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं। अब ये क्यों रिज़ल्ट्स अप्रोच यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस? ये इसलिए यूज़ कर रही होती हैं क्योंकि एक तो इसको मेजर करना बहुत आसान है, क्योंकि हम सिर्फ रिज़ल्ट्स को देखते हैं और रिज़ल्ट्स को देख के हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक थी या नहीं थी। तो इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये उन सिचुएशंस में होता है जहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, आपके पास स्टाफ बहुत कम होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। फिर आपका जो HR का बजट होता है वो बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके, क्योंकि एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा नहीं होता, आपको टाइम इतना स्पेंड नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जो आपके सामने होता है, आपकी टेबल पे होता है, आप एग्जैक्टली उसी को देखते हैं और उसी को देख के आगे जो है वो उसकी परफॉर्मेंस मेजर करके उसको रिवॉर्ड्स देते हैं या जो भी पनिशमेंट्स वगैरह देते हैं वो हम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब ये भी अप्रोप्रिएट कब होता है? ये अप्रोप्रिएट तब होता है जब वर्कर्स की जो स्किल्स होती हैं, व्हेन वर्कर्स स्किल्ड इन नेसेसरी बिहेवियर्स। नाउ इट इज़ बेसिकली यूजफुल व्हेन वर्कर्स ऑलरेडी हैव द स्किल्स एंड दे ऑलरेडी नो दैट हाउ टू बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो वेल सेटल्ड होता है, वो टीम्स जो होती हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होती हैं, उनको एग्जैक्टली चीज़ों का पता होता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर हम बास्केटबॉल की टीम देखें या NBA की जो टीम होती है या इसी तरह से क्रिकेट की जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, अगर हम उसको देखें तो उन लोगों को बिहेवियर्स का पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने किस सिचुएशन में क्या करना है। उनके पास जो है वो ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं और उनको वो तमाम चीज़ों का जो है वो पहले उस प्रोसेस से गुज़र के आई होती हैं। अब क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुज़र के आई होती हैं, इस वजह से हमें जो है वो और मज़ीद ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती। तो यहाँ पे इस वजह से उनको
जो है वो हम उनके रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं। दूसरी एक और चीज़ भी है यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए या जो नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो पहले से ही नॉलेज या वो स्किल्स या वो एबिलिटीज़ या दूसरे जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनमें अवेलेबल होते हैं। तो क्योंकि उनमें वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये सारी की सारी पैकेज अवेलेबल है और हमने जो है वो सिर्फ रिज़ल्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि वो खुद बाकी चीज़ों को जो है वो खुद से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग बिहेवियर्स एंड रिजल्ट्स ऑब्वियसली रिलेटेड। यहाँ पे जो बिहेवियर्स और रिजल्ट्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। लाइक हमें जो आउटकम्स होती हैं हमें पता होता है कि यहाँ पे आउटकम्स जो है वो हमारी क्या है। लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर एक आदमी जो है वो अखबार बेचता है तो उसको पता है कि उसने किस किस घर में जाना है, उसने कैसे जाना है, किस टाइम पे जाना है, और वहाँ पे अखबार बेच के या अखबार वहाँ पे पहुँचा के और उसने जो है वो वापस आ जाना है। तो अखबार पहुँचाना इज़ बेसिकली अ बिहेवियर और वहाँ पे पहुँच जाना है इज़ बेसिकली अ रिज़ल्ट। तो वो टाइम पे पहुँचना और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि वेल एक्सपीरियंस्ड होता है, इस वजह से उसको इन तमाम चीज़ों का पता होता है। ओके जी, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट्स ओवर टाइम। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट्स ओवर टाइम का मतलब ये है कि वो जो अगर बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम, मीन्स कि अगर एक अखबार वाला जो है वो पहले 5 मिनट में अखबार जो है वो 10 लोगों को देता था और अब अगर जो है वो 14 मिनट में जा रहा है और दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। उसके अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रही है, रिज़ल्ट्स के अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो उसके इस तरह से बिहेवियर्स भी चेंज हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो उसके रिज़ल्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। फिर एक इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब ये अप्रोच यूज़ करते हैं तो वाइल चूजिंग दिस अप्रोच वी ऑल्सो हैव टू सी दैट वेदर देयर आर स्पेसिफिक वेज टू डू दैट प्रोडक्ट और वेदर देयर इज़ अ स्पेसिफिक वेदर देयर आर स्पेसिफिक वेज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, कि एक से क्या ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस हैं या नहीं हैं एक काम को करने के लिए। तो अगर तो उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है, और अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इसी तरह से जो है वो हम उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो क्रिकेट मैच के अंदर अगर हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके पास जो है वो तमाम की तमाम स्किल्स मौजूद हैं, तो हम आखिरी ओवर्स में अगर देखते हैं कि अगर कोई हमारी मुखालिफ टीम जीत रही है तो हम वहाँ पे वो प्लेयर लेके आते हैं जो कि जिसके पास स्किल्स भी होती हैं, उसके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, उसके पास नॉलेज भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम स्पिनर भी ला सकते हैं, हम फास्ट बॉलर भी ला सकते हैं, हम जो है वो मीडियम पेसर भी ला सकते हैं, हम फास्ट बॉलर भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पे हम वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द रिजल्ट्स अप्रोच। Now let's discuss about the trait approach. As I told you earlier that trait approach is basically focused on the individual basis or the team basis. Now when we talk about emphasis on the individual basis, so it means that it must have some knowledge, it must have some abilities, it must have some skills. So what kind of abilities would be, it might be some cognitive abilities, it might have some personality, it might have some knowledge, particular knowledge required and all that stuff. तो इसके अंदर जो है वो स्टेबल ट्रेड्स होने चाहिए, वो तमाम का तमाम पूरा पैकेज होना चाहिए। देन देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड डिज़ायरेबल वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स। अब ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए या पर्सनालिटी ट्रेट्स होनी चाहिए वो उन बिहेवियर से भी रिलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स सपोज़ हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो थोड़ा सख्त होता है। लाइक एक आदमी जो है वो अगर बहुत ही नरम मिजाज है या बहुत ही सेंसिटिव है और उसको अगर हम पुलिस की जो है वो जॉब दे देते हैं
तो पुलिस के अंदर जो है वो बहुत सख्ती भी करनी पड़ती है, और वो जो है वहाँ के जो काम जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से करवाने पड़ते हैं। तो अगर तो वो इस तरह से हो रहा है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो जॉब करना। इसी तरह से अगर जो हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए, वो उसको जो है वो पता होना चाहिए कि अगला आदमी जो है वो क्या बात कर रहा है और उसे कैसे बात करनी है, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए और वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए जो उसकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं वो वर्क रिलेटेड बिहेवियर से रिलेट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम बाज़ औक़ात हम ये फ़ील करते हैं कि यार हमारा CGPA भी 3.8 था या 3.5 था, और हम तो हमेशा से, हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा था, हमारा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब जॉब के लिए गए हैं तो अगला बंदा जो है उसका CGPA भी मुश्किल से 2.4 2.5 था, और उसकी यूनिवर्सिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको रख लिया। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटायरली जो है वो बेस कर रहा है कहाँ पे, वो बेस कर रहा है सिफारिश पे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिफारिश पे बेस कर रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, तो उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रही थी, HR के अंदर था। तो उसने कहा जी कि हमें कोई एक बच्चा चाहिए जो कि अच्छा जो है वो सेल्स का हो, और हम उसकी सैलरी भी जो है वो हम उसको अच्छी देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि 1-2 स्टूडेंट्स हैं, उनके CGPAs भी अच्छे हैं। उसने कहा हमें CGPAs नहीं अच्छे चाहिए, हमें बल्कि CGPAs कम वाला बच्चा चाहिए, क्योंकि अगर कम CGPA उसका होगा तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है कि वो ज़्यादा जगहों पे वो काम कर सके, हम उसको थोड़ा टफ़ टाइम भी दे सकें, और साथ वो ये भी होगा कि उसको कहीं और जॉब भी नहीं मिल रही होगी, तो उसकी मजबूरी होगी वो उसी चक्कर में पड़ा रहेगा कि यार मैंने यहीं पे काम करना है और उस तरह से काम करना है। तो वो जो उनके बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि वो उसको देख रहे होते हैं कि उससे रिलेटेड जो है वो काम हो रहा है या नहीं। दैन द अदर थिंग इज़ अप्रोप्रिएट इफ स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो वाकई उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट जो है वो प्लान हुई हैं या नहीं है। नाउ as long as the trade approach is concerned, there are some disadvantages also. The first disadvantage is improvement not under individual's control. इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती। दैन द ट्रेड में नॉट लीड टू डिज़ायर्ड बिहेवियर्स और रिजल्ट्स। बाज़ औक़ात ये होता है जी कि जो इम्प्रूवमेंट होती है वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो क्वालिटी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस डिज़ायर्ड बिहेवियर से या रिज़ल्ट से वो मैच करती हो या नहीं करती हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसमें 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और 9वां खिलाड़ी या 10वां खिलाड़ी जो है वो उधर आया है, अब उसको उसको एक बॉल के ऊपर जो है या 2 बॉलों के ऊपर जो है वो उसको 10 स्कोर्स चाहिए। अब आप अगर यूसुफ योहाना को ले आते हैं तो यूसुफ योहाना से शायद हिट ना लगे उस पॉइंट पे, या अगर आप सरफराज को ले आते हैं तो शायद उसको जो है वो उस पॉइंट पे हिट ना लगे कि वो हिटर नहीं है। लेकिन उसकी जगह अगर आप रज़ाक को ले आते हैं, अगर रज़ाक आता है तो शायद वो बेहतर तरीके से वो हिट मार सकता है, और वो या अफरीदी को ले आते हैं तो वो बेहतर तरीके से 10 स्कोर जो है वो अचीव कर सकता है 2 बॉल्स पे। तो डिपेंड करना होता है आपके बिहेवियर्स पे और आपकी क्वालिटीज़ पे। बाज़ औक़ात जो है वो आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उस करंट सिचुएशन के ऊपर जो है वो मैच नहीं कर रही होती, या आपकी वो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डिज़ायर्ड बिहेवियर्स या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो मैच नहीं कर रहे होते। तो these things are basically important. At the end of this lecture, I would like to give you a quick review that is regarding defining performance. In this whole chapter, first of all, we define what actually the performance is, and we discuss that performance is related to the behaviors, and then we also discuss about the determinants of performance, that what were actually the determinants of performance, and then we also discuss the performance dimensions, and then in the last we discuss approaches to measuring performance. Now while discussing the approaches to performance, let me share one thing more. अप्रोचेज़ जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक अप्रोच पढ़ी हुई है तो हम उस अप्रोच को ही एम्बेड करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम सिचुएशंस देखते हैं,
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज के देखते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सी अप्रोच यहाँ पे बेस्ट यूज़ हो सकती है, और फिर हम उस अप्रोच को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सिर्फ एक अप्रोच यूज़ हो रही हो, एक अप्रोच से ज़्यादा भी अप्रोचेस यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा जो एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम एक अप्रोच यूज़ कर रहे हों, while in another department we are using a different approach, and so on and so forth. So it depends on the situation that which approach we are going to use and which approach we are not going to use. So uh, in exam there might be a question regarding giving you a scenario, and then we will ask you that which approach is best for it, and also write its justification. ये भी हो सकता है कि हम आपको जो है वो केस स्टडीज़ दे दें, और केस स्टडी के अंदर जो है वो हम आपसे पूछें कि कौन सी चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट है और कौन सी चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आज के लिए जो है वो अभी इतना ही काफ़ी है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो बेसिकली बिहेवियर के ऊपर है। उसमें आप एक अगर वीडियो ने आपने देखनी है और उसके बाद आपने उसकी समरी बनानी है, और समरी जो है वो हम ये जो आपका डिस्कशन सेशन होगा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपने देखना ये है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। एक स्टूडेंट है, और वो जो स्टूडेंट है वो बेसिकली डिफरेंट जगहों पे जा रहा होता है, और उसके साथ डिफरेंट तरीके से जो है वो लोग बिहेव कर रहे होते हैं। तो आपने उसमें देखना ये है कि वो बच्चा जो है वो उसके लिए कौन सा बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट है, उसको अगर समझाना चाहिए तो वो किस तरीके से समझाना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें होंगी, कौन से तरीके होंगे जिसमें जो है वो सारा का सारा काम हो रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हम दोबारा करेंगे, और डिस्कशन सेशन जो है वो आपका हम कल वही टाइम जो कि हमारा है उस टाइम पे हम डिस्कशन कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको उसके अलावा भी ना समझ आए तो आप मुझे जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या MS Teams के ऊपर जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अटेंडेंस से रिलेटेड जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बच्चा डिस्कशन सेशन के अंदर आएगा वही बच्चा उसकी अटेंडेंस भी होगी। अगर एक बच्चा नहीं आएगा तो उसकी ऑब्वियसली अटेंडेंस नहीं होगी। तो लिहाजा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो डिस्कशन सेशन के अंदर मौजूद हों, अदरवाइज़ जो है वो आपका अटेंडेंस का इशू हो सकता है। इसके साथ साथ जो वो बच्चे जो MS Teams के ऊपर आए थे और कोशिश कर रहे थे और वो नहीं आ पा रहे थे, तो वो काइंडली अपने CR से रब्ता कर लें, और इस बार जो है वो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लें। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक मॉक डिस्कशन सेशन जो है वो भी आपके लिए अरेंज कर दूंगा, क्योंकि हमने पहले तो एक कर लिया था, मैं फिर दोबारा अरेंज कर दूंगा, जिसमें हम कोशिश कर लेंगे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों, ताकि जब हमारा डिस्कशन सेशन हो तो वो उसमें आ पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग काइंडली जो टाइम दिया होता है कोशिश किया करें कि आप सारे के सारे टाइम पे आ जाया करें। ऐसा ना हो कि आपके, क्योंकि लास्ट जो हमारे डिस्कशन सेशंस हुए हैं उसमें जो आपके CR थे वो बेसिकली आपको कॉल्स कर करके और आपको बुला रहे थे कि आप लोग आ जाएं। तो टाइम का थोड़ा ख्याल किया करें, कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो खुद ही आ जाएं, आप लोगों को जो है वो बुलाना ना पड़े, और ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए, क्योंकि जब हम टाइम पे कोशिश करते हैं कि सेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बच्चे जो लेट आ रहे होते हैं वो पिछला सेशन जो है वो मिस कर चुके होते हैं, और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो डिडेंडेंसी आ जाती है उसके अंदर जो है वो बार बार फिर हम एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से टाइम का ख्याल रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।